یا ربی الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ احباب، آج آغاز جو ہے ہم قرآن مجید کے ناظرہ سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ناظرہ آپ کا ٹھیک ہو، کم سے کم اتنا ہو کہ آپ نماز پڑھ سکیں اور اس میں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اتنی سی کوشش ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور پچھلے ہفتے ہم نے اس میں سورہ الناس پڑھی تھی، آج ہم سورہ الفلق پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ قواعد بہت آسان ہوتے ہیں، اگر آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ سب کو آتی بھی ہیں یہ ساری صورتیں۔ اس صورت کو پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ 10-15 منٹ میں ہم لوگ چلے جائیں گے ترجمہ کی طرف، ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر آخر میں 10 منٹ 5 منٹ کے لیے ہم جو ہے وہ گرامر کا ایک پیرا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ 3 چیزیں پڑھیں گے آج، یا اللہ۔ اچھا، یہ ذرا سنیے گا، میں آپ کو پہلے ذرا مختلف قراء کے آپ کو سناتا ہوں کہ وہ لوگ کیسے پڑھتے ہیں اس کو۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ آپ یہاں ذرا غور کریں گے نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو گرین میں لکھا ہوا ہے نا، جو بھی حرف گرین میں لکھا ہوا ہے یہاں پر اس کو جھٹکا دینا ہے، جھٹکا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ قل، فلق، خالق۔ اچھا، اور اگر آپ دوسرا دیکھیں کہ یہ من شر، نون ساکن ہے، دیکھیں نون کے اوپر سکون ہے، اور اس کے بعد جو حرف ہے وہ حلق سے نہیں نکلتا، تو اس لیے ہم اس کو یہاں پر غنہ کریں گے، من، ہر جگہ ایسے ہی، ومن، ومن، ایسے ہی کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے دوست۔ ایک یہ ہے، یہ نون مشدد ہے، یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے۔ اسی طرح جو حروف قلقلہ ہے وہ یہ دیکھیں، با، اس کو واقب، اس کو بھی ایسے پڑھیں گے، اور یہ دال کو بھی ایسے ہی پڑھیں گے۔ یہاں پر قلقلہ کرنا ہوتا ہے، یہاں وقف ہے تو آپ نے قلقلہ کرنا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ جو گرین میں ہے اس کو انہوں نے تفخیم میں ڈالا ہوگا، دیکھیں ذرا میں کیس میں ڈالا ہے، چلو آتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، اب آپ دیکھیں ذرا، سنیے گا کہ وہ کیسے پڑھتے ہیں اس کو، ذرا قرآن کیسے پڑھتے ہیں اس کو۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ. سب سے پہلے چیز جو دیکھنے والی ہے، توجہ والی ہے، وہ ہے ذال۔ تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ وہ زبان کو دو ہونٹوں کے درمیان، یعنی دونوں دانتوں کے درمیان میں لے کے آتا ہے باہر، اور اس میں کوئی سیٹی نہیں ہوتی، بس یہ دو باتیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں، اعوذ، اعوذ، آپ دیکھیں ذرا، أعوذ برب. دیکھا آپ نے، خوب غور سے دیکھیں۔ أعوذ برب. قل أعوذ برب الفلق. آپ دیکھ رہے ہیں قاف کو انہوں نے قلقلہ کیا ہے، فلق۔ آپ جب بھی یہاں رکیں گے تو آپ نے اس کو جھٹکا دینا ہے، برب الفلق۔ اور یہ را جو ہے، را، اس کو بھی آپ نے ایسے پڑھنا ہے کہ منہ کو آپ کو جو ہے وہ منہ بھر جائے، ٹھیک ہے، پر پڑھنا ہے، برب الفلق۔ من شر ما خلق. میں، ایک تو یہ خیال رکھنا ہے، اور دوسرا ما، خا، خا، خا کو آپ نے منہ کو بھر لینا ہے، آپ نے، ما خلق۔ ومن شر غاسق إذا وقب.
وہ جو آپ نے خا کے ساتھ کیا تھا نا وہ یہاں غین کے ساتھ بھی کرنا ہے. وَمِن شَرِّ رے 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 اس کو آپ نے نارمل پڑھنا ہے, نارمل جیسے پڑھتے ہیں. مِن شَرِّ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ غَاسِقٍ غاسق إذا وقب وَقَبْ. ومن شر النفاثات في العقد. یہ جو ثا ہے ثا فا فا جو ہے فا 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 اوپر کے دانت ہوں گے آپ کے اوپر کے دانت, اور وہ آئیں گے آپ کے نیچے والے ہونٹ کے خشک حصے پہ لے کے آئیں. من شر النفا فا 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 کے لیے پھر آپ نے وہی کام کرنا ہے کہ سیٹی نہیں بجنی چاہیے. تو دانتوں کے نیچے آپ نے زبان کو نوک کو لے کے آنا ہے. تو نفاثاتی فاثاتی کوئی سیٹی نہیں آئے گی, ٹھیک ہے بس. في العقد فی العقد عقد ومن شر حاسد إذا حسد. آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ ہے طریقہ. اب اس کو ایک اور اچھے طریقے سے جو سکھایا ہے وہ ان صاحب نے سکھایا ہوا ہے. اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے, اور یہ بہت زبردست طریقے سے پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ سے میں سنتا ہوں, ذرا غور سے دیکھیے گا, بہت آسان ہے, یہ 1 منٹ سے کم کی ویڈیو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بحرین والوں نے کیا ہے, ٹھیک ہے, بحرین والوں نے. قل اعوذ برب الفلق. اس آیت میں آپ نے 4 چیزوں کو غور سے دیکھنا ہے اس آیت میں, ٹھیک ہے. کیا کیا ہے؟ پہلی چیز ہے قاف, قل قل آپ نے قاف کو موٹا پڑھنا ہے اسی طریقے سے, ٹھیک ہے. اور اس دوسری چیز جو ہے وہ ہے ذال. ذال میں سیٹی نہیں آنی بجنی چاہیے, بلکہ آپ یہ دیکھیے اس کو کیسے کرتا ہے. یہاں پہ اپنی زبان کو ان دونوں دانتوں کے درمیان لے کے آتا ہے تاکہ سیٹی نہ بجے. اعوذ. پھر یہاں پہ را ہے, را بے رب بل, تو یہ را کو آپ نے بے رب نہیں پڑھنا, بے رب بھی نہیں, بے رب بل. با کے اوپر آپ نے دونوں ہونٹوں کے تر حصوں کو ساتھ ملانا ہے. بے رب بالفلق. بالکل وہی ہے, میں نے جیسے کہا کہ اوپر جو دانت ہے نا, یہ والے دانت جو ہے, یہ والے دانت آپ کے ہونٹ کے اس خشک حصے پہ آنے چاہیے, یہ والے. تو آپ کی یہ فا جو ہے وہ صحیح نکلے گی, ٹھیک ہے. فلق. اور یہ جو قاف ہے یہاں پر قلقلہ کرنا ہے. قلقلہ مطلب جھٹکا دینا ہے اس کو. یہ 4 چیزیں ہیں جو آپ نے غور سے اس کو مشاہدہ کرنا ہے. اس کا دوبارہ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں, اب آپ دیکھیے ذرا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. یہاں پر آپ نے خا کو دیکھنا تھا, ٹھیک ہے, کہ خا کیسے پڑھتا ہے. خلق. دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھیں گے. خلق. شاباش. ومن شر غاسق إذا وقب. غین کو آپ نے دیکھا, دوبارہ سے دکھاتا ہوں. من شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. سین کے اوپر آپ کی سیٹی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے دوست. اب ذرا میں سننا چاہوں گا آپ لوگوں سے, کوئی بھی آپ میں سے جو مجھے سنا سکے, کوئی بھی سنانا چاہے تو میدان سب کے لیے. جی پلیز کوئی بھی سنا دے ذرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شاباش. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
शाबाश। ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. हसद। अच्छा ठीक है। अब एक दफा ये ठीक आपने सही पढ़ा है सारा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ चीजें ऐसी है ना जो ऐसे रह जाती हैं, जैसे शर्र मिन शर्रिन नफ्फाथाति फिल उक़द। तो आप क्या करिए, उसको आपने मजहूल नहीं पढ़ना। मजहूल का मतलब ये होता है कि आप वैसे गुजर जाएं जी उससे। मेरा सांस एकदम चढ़ गया था जी. हाँ, तो वो सांस को आपने ना खींचना होता है शुरू जी में पहले वर्ष के। जी डॉक्टर साहब। जी. أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق शाबाश من شر ما خلق शाबाश ومن شر غاسق إذا وقب शाबाश ومن شر النفاثات في العقد शाबाश। و- ومن شر حاسد إذا حسد. क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस जीत गई आप माशाल्लाह से। ये हमारी आज की सूरत थी जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को सही तरीके से आपको आ जाए, और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाब हम हो गए इंशाल्लाह। चलिए, या अल्लाह। अब तो मैं तर्जमे की तरफ आ रहा हूँ, और तर्जमे में हमारे पास बहुत आसान जो है वो अल्फाज है, वो अल्फाज जो उर्दू में मौजूद हैं, अरबी से लिए गए हैं लेकिन उर्दू में मौजूद हैं। बस हुआ क्या है, दो चीज़ों का फ़र्क आया है दरमियान में, और ये मैं जल्दी से पढ़ता हूँ जितना भी पढ़ सका मैं, फिर आपको किताबें भेज दूंगा। फ़र्क ये आया है कि उन्होंने क्या किया कि उर्दू वाले अल्फाज के शुरू में अलिफ लाम लगा दिया बस। तो इससे ये देखो, ये अल ईमान, तो ये उर्दू का ही ईमान ही रहेगा, तर्जुमा में ईमान ही करेंगे हम, ईमान। तो जुल्म है तो अज जुल्म कर दिया इसको, ठीक है, वो अभी सिखाएंगे अभी। एक तो ये फर्क आया। दूसरा ये फर्क आया है कि गोल ता लगा दी, जैसे ये किबला के आखिर में है गोल ता, तो हमारी ये गोल ता चेंज हो जाती है कभी कभी हा में, जैसे तालिबा किबला हम कहते हैं किबला, तो किबला कहते हैं हम। और या फिर ये लंबी ता में बदल जाती है, लंबी ता। अभी हम इसके बहुत सारे अभी हम पढ़ेंगे, इसकी मिसालें पढ़ेंगे। बस हमने अभी तक यही सीखा है, ठीक है। अब मैं आपको ये अल्फाज दिखाता हूँ। अल ईमान, ईमान यानी अज़्ज़ुल्म, जुल्म यानी क़िबला, अल क़िबला यानी क़िबला। तौफीक वही है, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अरबी, अरबी। सरी, सरी का सुरअत हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, हमारी थोड़ी सी। सरी का मतलब होता है तेज, जल्दी। जिस्म, जिस्म ही है। इंसान, मोमिना, देखो मोमिना के आखिर में गोलता है लेकिन हम इसको हा पढ़ेंगे, मोमिना। मुशरिका, नहर, वही नहर जिसको हम नहर बोल देते हैं, नेर भी कहते हैं, नेर, नेर वाले पुल थे वो। अब ये नहर, नहर है, असल में लफ्ज क्या है, मा वरा नहर। बहर, जैसे नहर है वही बहर है, एक ही तरह के लफ्ज होते हैं, अरबी में एक तरह के अल्फाज होते हैं। तो इसी तरह आज़ान है। ये अच्छा, ये आज़ान में कहता हूँ, ये क्या है, अजान, 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 अजान है, ठीक है, आज़ान नहीं बल्कि ये अजान है, अजान। इसी तरह जुमा है तो हम जुमा कहते हैं, जुमा। जुम ऐसे पढ़ते हैं, जुम आ, ऐसे नहीं है। ये लफ्ज है जुमुआ, तो मैं इसको ऐसे जो मो आ, जुमुआ। अच्छा, इसी तरह हसरत है, देखो आप देख रहे हैं हसरा कर दिया, इसको हम हसरत पढ़ेंगे, पछतावा, नदामत। अलकसम, कसम। फितना, कुफर, खबर, कत्ल, निकाह, सुआल। अच्छा, ये लफ्ज होता है सवाल, हम कहते हैं सवाल, लेकिन ये असल लफ्ज है सुआल। मैंने आपसे अर्ज किया था कि अगर आपकी अरबी अच्छी हो गई तो आपकी उर्दू बड़ी अच्छी हो जाएगी। ये है सुआल, तो हम इसको सवाल ही कहेंगे, सवाल, ठीक है। अगर कोई उर्दू में सवाल कहता है तो चलता है। सफ़, सफ़ वही सफ़ है, हमारे यहाँ भी सफ़ है। और वसीयत, शफाअत, कब्र, नफ़ा, एहसान, तिलावत, खलीफा, हुब। हुब का असल में मोहब्बत को हुब कहते हैं, उर्दू में भी हुब है, जैसे हुब इलाही। और हुब जाह, उर्दू के एक लफ्ज़ है बड़ा मशहूर, हुब जाह, यानी कि लोग इज्जत की वो करते होते हैं, तलब करते होते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, हुब जाह। अलबाब यानी बाब, बाबे सलाम, बाब मतलब दरवाज़ा।
इसी तरह शरीक, ताकत, मता, मता मालो मता यानी सामान। क़िताल, क़िताल उर्दू का लफ्ज़ है, लेकिन क़िताल का हमारे उर्दू वालों को नहीं पता कि क़िताल असल में जंग को कहते हैं, ठीक है, जंग को, लड़ाई को क़िताल बोलते हैं। कहते हैं लफ्ज़ से लफ्ज़ मिलने से जुमला बनता है। कुरान की आयत भी मुख्तलिफ जुमले हैं। जिस तरह आप मुख्तलिफ अल्फाज का मतलब खुद समझ रहे हैं, इसी तरह कुरान के जुमलों और मुकम्मल आयत का मतलब भी बहुत जल्द इंशाअल्लाह आप खुद समझने लग जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये उर्दू के अल्फाज है, देखिए अगर आप गौर से देखें तो ये उर्दू के लिखा है, इंसान, नहर और ईमान, कुफर, वसीयत, सूरज, जिस्म, खलीफा, अजान, जुमा। तो ये देखिए ऊपर भी यही लिखे हुए हैं, अरबी में लिखे हुए, नीचे उर्दू में लिखे हुए, खत नस्तालीक में। तो मैं अभी आपसे पूछना चाहूँगा कि इनमें से कौन कौन से लफ्ज़ हमें आते हैं। ये देखें, फितना हमें आता है, वो आता है, फिर फितना आता है, अशद, अशद का भी है, जैसे खून की अशद ज़रूरत है, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको अशद बोलते हैं, ये वही अशद है। कत्ल भी आता है हमें, बस ये इसमें से एक लफ्ज़ हमें नहीं आया, मिन, मिन नहीं आया हमें। तो मिन तो हमें आना चाहिए। मिन कुरान मजीद में 3000 बार आया हुआ है, 3000 बार, इसलिए इसका माना हमें आना चाहिए। इसका मतलब होता है से या फ्रॉम, जैसे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, मिनश शैतान का मतलब है शैतान से। चलो जी, ये सारे अल्फाज हमें आ गए। इसी तरह इन्ना का मतलब बेशक है, हम पिछली दफा पढ़ चुके थे। इन्ना और अन्ना दोनों का मतलब है बेशक। इसी तरह मुत्तकीन, मुत्तकी की जमा है मुत्तकीन, जैसे मुस्लिमीन, काफिरीन, मुनाफिकीन, ये सारे अल्फाज जमा है, या नून से जमा बनती है। अच्छा, फी जन्नातिन व नहर, जन्नात और सुपड़े की छोटे मोटे सर्रा सोच, जन्नात, जन्नत की जमा है जन्नात, ठीक है, और जिन्नात अलग चीज है। तो ये है जन्नात, ठीक है, जब जीम के नीचे जेर आएगी तो फिर वो जिन्नात बन जाएंगे, तो वो नहीं है, ये जन्नात है यानी बागात। और नहर यानी नहर है। और अच्छा, ये हमें सारा तकरीबन आता है। फी का मतलब नहीं आया, ये बोल जाती है, इसको फी का माना आना चाहिए। ये उर्दू में इस्तेमाल है इसका, फी का। कोई मिसाल बता सकता है फी का उर्दू में इस्तेमाल, हबाब में से? फी का इस्तेमाल कोई फीकस, है? फीकस, हाँ, यहाँ फीकस तो चलो वो तो आ सकता है, लेकिन वो नहीं है। और क्या मिसाल हो सकती है? फी, फिल फॉर में जो आता है वो फी है। हाँ, फिलफोर भी ठीक है, शाबाश। फिलफोर, ये फी में, जैसे, हाँ बिल्कुल, आयशा किसे कह रही है, में। तो जैसे हम कहते हैं फी सबीलिल्लाह, ये वो है उर्दू वाला। देखो अरबी में से उर्दू आ गया, तो ये है फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह के रास्ते में, ये है फी। तो फी जन्नात का मतलब क्या हो जाएगा? जन्नात में यानी जन्नतों में, बस इतनी सी बात। हाँ जी। अच्छा, वयअलमु, इसमें तो हमें इल्म का पता है, लेकिन ये या क्या चीज़ है ये हमें नहीं पता, यअलमु ये नहीं पता। तो हमें इसके लिए तीन चार हरूफ को समझना है, अलिफ, ता, या और नून को समझना है, ठीक है। इसको आप अतैन भी कह सकते हैं, अतैन, अतैन, इसको समझिएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है यअलमु, इसको मैं या को नीचे लेके आ रहा हूँ। कह रहे हैं यअलमु का माना क्या है? तो इल्म का तो हमें पता है, इल्म का मतलब होता है जानना। वो कह रहे हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है, जिसकी शुरू में अलिफ, ता या नून आ जाए तो ये प्रेजेंट टेंस होगा। हमने कहा ठीक है। तो यअलमु का मतलब आप समझ लें कि वो जानता है, वो जानता है, ठीक हो गया। अब इसको मैं चेंज कर रहा हूं अलिफ के साथ, तो अअलमु, मैं सिर्फ जबर जेर भी चेंज नहीं कर सकते आप, सिवाय इस अलिफ, ता या नून के चेंज करना है बस। या अलमो था ना, या के ऊपर जबर थी, मैंने इधर लगा दिया, अलमो कर दिया, तो अब मैं जानता हूं। तो इसका मतलब है कि अलिफ आता है मैं के लिए। इसी तरह ता जो है ये आता है तालमो, यानी तुम जानते हो, तुम, ता बराबर है तुम के लिए। और नून आता है जैसे नअलमो, नअलमो, हम, हम के लिए आता है, हम। तो देखिए, अब मैं, तुम, वो और हम, ये चार लोग हैं बस। और ये बदलते हैं इस अलिफ, ता या नून से बदलते हैं, ठीक है।
अब मैं इसको चेंज, आपको मैं एक और मिसाल से बताऊं, जैसे लफ्ज होता है आऊज़ो, इसका मतलब होगा मैं पनाह मांगता हूँ, इसलिए कि शुरू में अलिफ आया हुआ है यानी हमजा आया है। आऊज़ो मैं पनाह मांगता हूँ, लेकिन इसको मैं चेंज कर सकता हूँ और मैं कहूँगा यऊज़ो, तो वो पनाह मांगता है। अब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ ता के साथ, ताऊज़ो यानी तुम पनाह मांगते हो, और आखिरी हो जाएगा नऊज़ो यानी हम पनाह मांगते हैं। तो ये अलिफ ता या नून को समझना है आपने, इसको अतैन बोलते हैं, अतैन। अलिफ बराए मैं, या बराए वो, ता बराए तुम, और नून बराए हम। बस ये समझ जाए बंदा तो तर्जुमा बहुत आसान हो जाएगा, हजारों लफ्जों का तर्जुमा वो खुद कर सकेगा। एक लफ्ज सीख लिया है या अलमो, तो समझ जाए अपने हजारों लफ्ज सीख लिए हैं। या अलमो वो जानता है, चलो इसको तो मैंने कर दिया वैसे, लेकिन उर्दू के अल्फाज तलाश करने हैं अभी जिस लेवल पर हमें है ना, हमें सिर्फ उर्दू के अल्फाज तलाश करने का हुक्म है बस। तो अच्छा, फी का भी हमें बताया है, इसका मतलब है मैं, तो इसका हमें आता है। और बर वही है, बहरो बर, बर आजम यानी कि खुशकी, और बहर का मतलब वही होता है समंदर होता है, तरी। तो ये हमें तीन लफ्ज आते हैं इसमें से, फिर भी मजमूई अंदाज़ा लगाया जाए ना, तो हमें जो है वो हमें 50% अल्फाज के तर्जुमा आता है पहले से ही, उर्दू में अल्फाज मौजूद है। इसी तरह वह खुलिकल इंसान, खुलिका छोड़ दे, चलो ये तो वर्ब है तो उसको, खुलिका वैसे खलकत से है, खलकत तख्लीक करना, वही अल्फाज है। इंसान का हमें तर्जुमा आता है, इंसान का आता है ना, तो इंसान को तो निकालो। और ज़ईफ लिखा हुआ है, उर्दू में इसको ज़ईफ बोलते हैं, ज़ईफ कमज़ोर। तो बस ये देखो दो लफ्जों का आता है, एक का नहीं आता, तो फिर भी हमें 50% से ज्यादा तर्जुमा आता है ज़ईफ। सर खौला का भी मेरा ख्याल है सबको आता ही है। खुलिका नहीं आता, जरा इस लेवल पर नहीं आता ना, इस लेवल जो हम जिस लेवल पर पढ़ा रहे हैं इस पे तो समझ नहीं आएगा। खुलिका ये क्या चीज़ है, ये पैसिव वॉइस है। जिन वर्ब्स के शुरू में पेश आ जाए ना वो पैसिव वॉइस होता है, यानी पैदा किया गया है इंसान को कमजोर, इंसान को ज़ईफ पैदा किया गया है, तख्लीक की गई है, इंसान की तख्लीक कमजोरी से की गई, कमजोर है। अच्छा, वला यरदा लिइबादिहिल कुफ्रा, इसमें कौन कौन सा लफ्ज आता है? रिदा, रिदा से रजा को बोलते हैं, रजा है लेकिन शायद नहीं आता हो। इबाद, इबाद तो आता है सबको, इबाद का मतलब है बंदे। और कुफर, कुफर को कुफर कहते हैं। ला इलाहा से मतलब नहीं है। तो भी हम दो चार लफ्ज हमें आते ही हैं इस जुमले में भी। अच्छा, आगे है फबिजुल्मिन। फा का मतलब तो आज याद कर लो, फा का मतलब होता है तो, जिसको इंग्लिश में कहेंगे सो। फा का मतलब ये होता है हमेशा जब भी आया करेगा। लेकिन कुरान मजीद में आप तर्जुमा देखेंगे ना उर्दू वाला, तो उसमें चूंकि 50 साल पहले के तर्जुमे हैं सारे, तो उसमें आपको इसका तर्जुमा मिलेगा पस, पस मिलेगा आपको, लेकिन इसका तर्जुमा आप तो कर सकते हैं। अच्छा, तो जुल्म का मतलब जुल्म है, उर्दू का लफ्ज हमें आता है। मिन का तर्जुमा हमें अभी आज ही आया कि इसका मतलब है से यानी फ्रॉम। और हादू, बस ये हमें दो लफ्ज आते हैं इसमें से। वो हमसे कह रहे हैं कि कौन से उर्दू के अल्फाज हैं। किबला उर्दू का लफ्ज है, ये हमें आता है। अल्लती नहीं आता, कुंता नहीं आता, अलैहा नहीं आता, किबला ही आता है हमें। अच्छा, व इन्नहु लकसम, तो कसम, कसम का मतलब है कसम ही जो हम कहते हैं। अच्छा, लाम जबर ला का मतलब क्या है, ये भी हम समझ लेते हैं। लाम जबर ला का मतलब होता है यकीनन, बेशक। लाम जबर ला, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह, तो लाम जब आप बार बार आया करेगा, लाम जबर ला का मतलब होगा यकीनन। अच्छा खैर, तालमूना और अजीम, अजीम का तर्जुमा हमें आता है, दो लफ्जों का तर्जुमा आता है। इस तरह इन तरका, तरका यानी तर्क करना, छोड़ देना। खैर, खैर का मतलब खैर ही है। और वसीयत, वसीयत उर्दू का लफ्ज है वालिदैन, ये हमें तकरीबन सारी आयत ही आती है। तो ये हमारे उर्दू के अल्फाज होते हैं। अच्छा, अब देखिए ये सारे अल्फाज जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से लेके आगे तक, ये सारे अल्फाज जो हैं, महपारा आपका कनेक्शन कमजोर है आज, महपारा जाए। जी सर, अभी नेट आया है, वो लाइन उसी वक्त डिस्कनेक्ट हो गई थी, कनेक्ट होते के साथ ही। अच्छा, अच्छा कोई नहीं, खैर। अच्छा, ये देखें, ये किताब मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है, आपके ग्रुप में भेज रहा हूँ, सबको भेज रहा हूँ। ये देखें सारे उर्दू के अल्फाज हैं, ठीक है। अब ये इतने ज्यादा उन्होंने निकाले हुए हैं माशाल्लाह से, इतने जबरदस्त किस्म के कि ना पूछें।
बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने निकाले हुए हैं। तो ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ ये कौन से सफ़ा है। सफ़ा नंबर 20 है। सफ़ा नंबर 20 से आपने आगे पढ़ना है, ठीक है। सफ़ा नंबर 20 यानी यूनिट नंबर 4 से आपने खुद पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको कहीं लेके जाना चाह रहा हूँ आगे। ये सारे उर्दू के अल्फाज हैं, बस में से आपको मैं आपको यही अल्फाज दोबारा दिखाना चाहता हूँ। अच्छा जी, ये बता रहे हैं हमें कि अरबी में जमा कैसे बनती है। तो आपने देखो कहाँ तक पढ़ना है, 20 से लेके 31 नंबर सफ़े तक आपने पढ़ना है, 22 to 31। ये पेजेस 11 पेजेस आपने खुद पढ़ने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला ये मैं आपको भेजता हूँ, बहुत आसान है। 5 मिनट में हो जाएंगे, मैक्सिमम 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन पढ़ना आप सबने है इंशाल्लाह। देखें, हमारी ज़ुबान में मुख्तलिफ अशिया की जमा के लिए जो आम मुस्तअमल अल्फाज है वो क्या है। अमल की जमा है अमाल, मस्जिद की जमा है मसाजिद, और हुदूद हद की जमा हुदूद है, अतराफ तरफ की जमा है, वगैरह वगैरह। कुरान मजीद में भी मौजूद इसी तरह ही है। जमा के ऐसे अल्फाज यहाँ वाहिद के साथ दर्ज हैं, आप वाहिद और जमा दोनों को समझ सकते हैं। देखिए नहर, इसका उर्दू में भी हम कहते हैं अनहार, तो वो यही अनहार ही है। अनहार नहर की जमा है अनहार, और ये जमा उर्दू में मौजूद है। ये जमा अनहार वाली जमा उर्दू में मौजूद है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखें। जैसे माल की जमा है अमवाल, इसमें आप देखिए ये दोनों एक तरह के अल्फाज ही हैं। देखिए आखिरी आखिरी हर्फ से पहले अलिफ आया करेगा, आखिरी हर्फ से पहले अलिफ आया करेगा। कलम की जमा है अकलाम, सबका एक तरह ही इसका जो है ना वो इसका वजन होगा। इसको वजन बोलते हैं, ले समझ लें, बाहर समझ लें, और तरन्नुम समझ लें, सबका एक जैसे होगा। जैसे पहले हर्फ के ऊपर जबर हुआ करेगी, दूसरा साकिन हुआ करेगा, तीसरे पे जबर हुआ करेगी, और चौथा जो है वो खामोश रहेगा, और आखिरी जो होगा वो उस पे पेश है वैसे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो वो देखो अनहार अमवाल अकलाम, अच्छा फिर आमाल आमाल अजसाम, इसी तरह अशिया, इसी तरह अस्मा, अमसाल, मिसल की जमा है अमसाल, अखबार, अस्वात, सौत की जमा है, सौत कहते हैं आवाज को, और वोट को भी कहते हैं सौत। तो अस्वात आवाजें, इसी ये उर्दू का लफ्ज है सौत, उर्दू का लफ्ज है। उर्दू किताबों में आप जब भी पढ़ेंगे तो वो सौत का मतलब उर्दू लिखा होगा, उसमें आवाज लिखा होगा उर्दू में भी। इसी तरह आप देखते हैं अतराफ, ये वही जमा आ रही है जो ऊपर से आ रही थी, और भी बहुत सारी हैं, अकसाम और सारी ऐसी हैं। अच्छा, और दूसरी जो हमारे पास जमा है उर्दू में वो ये वाली है, किताब की जमा कुतुब, तो कुतुब कहेंगे कुतुब। इसी तरह अय्याम, मसाजिद, कुबूर, नुफूस, अब कुबूर और नुफूस एक जैसी जमा है। हुदूद, ये भी एक जैसी, वही इन्हीं के साथ मिली हुई जमा है। उमूर, ये भी इन्हीं के साथ मिली हुई जमा है, ये वाली। ये 4 लफ्ज एक तरह के आपके सामने आ रहे हैं उर्दू में, ये उर्दू में है। उर्दू बड़ा मुश्किल है, उर्दू का पेपर पास करना, ये लोग आसान समझते हैं उर्दू का पेपर पास करना। अच्छा, इसी तरह लक़ब की जमा है अलक़ाब, इस तरह कुलूब। अब देखो उमूर, नुफूस, हुदूद, कुलूब, नुजूम, नजम की जमा नुजूम, एक जैसे बिल्कुल उर्दू वाले अल्फाज हैं। इसी तरह मसाजिद की तरह है कवाकिब, उर्दू में है कवाकिब, यानी कौकब की जमा है, कौकब यानी कवाकिब जमा। इसी तरह आसार उर्दू का है, मसाकिन उर्दू का लफ्ज है। इसी तरह अबसार, मलाइका, मलिक की जमा मलाइका, कबाइर, आईदी, शायद उर्दू में नहीं देखा मैंने आईदी, आईदी का मतलब होता है हाथ। गुयूब, गुयूब गैब की जमा गुयूब, अल्लामुल गुयूब। इसी तरह शैतान, शयातीन इसकी जमा है। तो कह रहे हैं जमा के ये चंद अल्फाज कुरान मजीद में मुतअद्दिद बार आए हैं, उन्हें अच्छी तरह से एक दफ़ा दोबारा देख लें। इनके शुरू में अलिफ लाम लगाकर उन्हें दोबारा देख लें। चीज़ों की जमा के लिए मुस्तअमल अल्फाज अरबी ज़ुबान में मुअन्नस होते हैं। अच्छा, ये भी याद रखिए, एक चीज़ मुज़क्कर होगी ना अरबी में, लेकिन जब वो जमा बनती है तो मुअन्नस हो जाती है। मसलन यौम, यौम का मतलब होता है दिन,
لیکن اس کی جمع ہے ایام، تو عربی میں وہ مؤنث ہو گیا، یوم مذکر ایام مؤنث. اسی طرح شیء، چیز کو کہتے ہیں شیء، اور شیء کی جمع ہے اشیاء، اشیاء مؤنث ہے. تو اسی طرح حجر، شجر، اس کی جمع اشجار، احجار، یہ مؤنث ہے ساری کے ساتھ، اور بھی بہت سارے. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ مؤنث شمار ہوا کریں گے. یہ مجھے ذرا آپ ابھی بتائیں گے. شاباش. قلم کی جمع کیا ہے؟ کوئی ایک نہ بتائے، سارے ہی بتاتے رہیں. جی یہ قلم کی جمع کیا ہے؟ ذرا جلدی سے بتائیں تاکہ وہ کہہ رہے ہیں اس کو فل کریں. اقلام، اقلام، کتب. کتب، ہاں. سر یہ کیا لفظ ہے؟ اثر، آثار، آثار، شاباش. آگے خبر، قبور، اخبار، قبور، شیء، اشیاء، ہاں. ہاں اخبار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اخبار نہیں مسا، ہے، قبور ہے، قبور اردو میں ہے. شیء اشیاء ہاں، ہے. مسجد، اشیاء، مساجد، ہاں امور، ہاں ہاں اصوات، ہاں حدود، ہاں ہاں کواکب، ہاں ہاں اطراف، صحیح. اجسام. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا ٹھیک ہو گئی. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ذرا ان میں سے ذرا دیکھیں کہ اس میں سے قرآن مجید میں جو جمع آئی ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس کی جمع کہاں ہے؟ اعمال، یہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے. شاباش. اعمال یعنی کس کی جمع ہے؟ عمل کی جمع ہے. مساجد، عمل، مسجد کی جمع ہے. مسجد، اشیاء کس کی جمع ہے؟ شیء کی جمع ہے. شیء، شیء، حدود، حد کی جمع ہے. حد، نفوس، نفس کی جمع ہے، نفس. نفس، اسی طرح قلوب، قلب، قلب کی جمع. آثار یعنی اثر. اثر، شاباش. القاب، اثر، قلب، اچھا جی. قلب، قلب، اسی قلب، طرح امور یعنی کہ امر کی جمع ہے امور. امر. شاباش. اچھا جی. اب ذرا مزید جمع دیکھیے گا. اب یہ مؤنث کے جمع دیکھیے، مؤنث جمع کیسے بنتی ہے. دیکھیں ایک آیت ہے، لفظ آیت. آیت کی جمع ہوگی آیات. علامہ کی جمع ہے یہ لفظ ہے علامہ، 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 علامہ. اس کی جمع ہے علامات. جنت کی جمع ہے جنات. اگر یہ جنت ہوتا تو جنات ہوتا. اسی طرح امانہ، امانات. صلات یعنی صلوات، صلوات. برکہ، برکات. کلمہ، کلمات. حسرات. اسی طرح سماوات، سماوات تو سب کو آتا ہے. اسی طرح حسنات، سیئات. سیئہ کی جمع ہے سیئات، گناہ. ظلمات، اندھیرے. ظلمت کی جمع ہے ظلمات. صالحہ یعنی صالحات، اس کی جمع ہوگی. بینات، واضح نشانیوں کو بینہ کہتے ہیں. اسی طرح طیبات، پاک چیزوں کو طیبہ کہتے ہیں، طیبات. درجات، ہم درجات کہتے ہیں اردو میں بھی. صدقات اردو میں کہتے ہیں. شہوات، خواہشوں کو شہوات کہتے ہیں. خیرات، بھلائیوں کو خیرات بولتے ہیں، نیکیوں کو. ثمرات، فروٹس کو کہتے ہیں. شہادات، رسالات. خطیئات، غلطیاں. اسی طرح والدات یعنی والدہ کی جمع والدات. خالہ کی جمع خالات. مسلمات، مشرکات، مہاجرات، منافقات اور خبیثات. اچھا اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ الف لام جو ہوتا ہے نا، الف لام، الف لام جس لفظ کے اوپر آئے گا وہاں پر تنوین نہیں آئے گی. دو زبر، دو زیر، دو پیش، یہ نہیں آئے گی. یہ دونوں اپوزٹ میں رہیں گے. اگر یہ ہوں گے تو پھر یہ الف لام نہیں آئے گا، اور الف لام ہے تو پھر یہ نہیں آئیں گے. بس یہ پتہ نہیں اس کو کیا سمجھ لیں، لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں آئیں گے، بالکل نہیں آئیں گے، ایک ساتھ نہیں آتے. اب دیکھیں، اب اس کی مثالوں میں دیکھیں قرآن مجید میں تو آتا ہے آیات. آیات یعنی آیت کی جمع ہے. اعمال، ایسے دیکھو چپ کے آیا کرے گا، دیکھو مکس آیا کرے گا. آپ نے تلاش کرنا ہے کہ ہاں یہ تو اردو کا لفظ لکھا ہوا ہے. اس طرح ثمرات لکھا ہوا ہے تو یہ ہے ثمر کی جمع.
इसी तरह बरक़ात यानी बरकत की जमा, अलामात यानी अलामा की जमा, इसी तरह जन्नात यानी जन्नत की जमा, इसी तरह सय्यात यानी सय्या की जमा, जुलुमात यानी जुल्मत की जमा, कलिमात यानी के कलिमा की जमा। तो ये इतनी आसान है उर्दू से अरबी और अरबी से उर्दू बनाना, इतना आसान है। अब हम जितना पढ़ चुके, आपने देखा ये 36 सफ़हात थे। आपने जो घर में पढ़ना है ना, वो है आपका 20 सफ़ा नंबर 20 से लेके सफ़ा नंबर 31 तक आपने पढ़ना है। किताब में भेज रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है। किसी और को भी चाहिए तो फिर वो मुझसे मंगवा ले, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अब हम पढ़ने वाले हैं दो दो लफ्जों को कैसे मिलाते हैं। कुरान मजीद में दो लफ्जों को मिलाना कैसा है। अब यहाँ से संगी मील है, संगी मील यदि एक माइलस्टोन हमने तय कर लिया कि उर्दू के अल्फाज तलाश करने थे हमें, वो हमें मिल गए। अब हम जुमले बनाने की कोशिश करेंगे, जुमले कैसे बनाते हैं कुरान मजीद में। तो अभी दो दो लफ्ज मिला के दिखाएंगे, फिर तीन तीन लफ्ज मिला के दिखाएंगे, फिर चार चार लफ्ज मिला के दिखाएंगे आपको, ठीक है। अब जरा इसको आप जरा देखिए और देखिए, आप कहेंगे यार ये तो इतना आसान है, इतना आसान कैसे हो सकता है। तो इतना ही आसान है, लेकिन फिर आपको ना ये चीजें मुश्किल हो जाएंगी। तो अभी देखिए जरा, ये लिखा हुआ है अल मशरिक़ वल मगरिब, यानी मशरिक और मगरिब। अल जन्नतु वल मगफिरा, यानी कि जन्नत और मगफिरत। दुनिया वल आखिरा, यानी दुनिया और आखिरत। आप मिसालों से समझ गए हैं आप। तो आप देखिए, ये देखिए मिसालें देखें आप। अल यानी अल जन्नत, हम अलिफ लम को निकाल देंगे। जन्नत और मगफिरत, इल्म और जिस्म, हक और बातिल, मशरिक और मगरिब, दुनिया और आखिरत, किताब और हिकमत, शम्स और कमर, समा आसमान और ज़मीन, समा और अर्ज, लैल और नहार यानी रात और दिन, लैल कहते हैं रात को और नहार कहते हैं दिन को, इंजील और कुरान, तौरात और इंजील, ज़कर और उनसा, हाँ मुज़क्कर और मुअन्नस, इसको बोलते हैं ज़कर और उनसा। इसी तरह हज और उम्रा, सलात और ज़कात, बिर और तक़वा, यानी बिर का मतलब नेकी है, ठीक है। अल्लाह का नाम बर है, बर, और ये लफ्ज है बिर, नेकी करना, नेकी और तक़वा। शर और खैर, सबर और सलात, बर और बहर यानी खुशकी और तरी। इसी तरह मगफिरत और रहमत, मौत और हयात, मैयत और हई यानी मुर्दा और जिंदा, अमन और खौफ, खौफ और हुज़न, खौफ और जूअ, ये लफ्ज नया है, जूअ। जू का मतलब होता है भूख, भूख, हाँ। व आमनहुम मिन खौफ, हाँ, अतअमहुम मिन जूअन व आमनहुम मिन खौफ। तो खौफ और जू, भूख को कहते हैं। मन और सलवा, मन और सलवा जो आसमान से उतरते थे बनी इसराइल पे, जालिमों ने बंद करा दिए, वरना आज तक चलते रहते। ज़हब और फिज़ा, ज़हब कहते हैं सोने को, और फिद्दा का मतलब होता है जिसको हम फिजा हमारे नाम चांदी। पर रखते हैं, चांदी को बोलते हैं फिजा। फिजा बहुत प्यारा नाम है, अच्छा नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है। ज़हब, ज़हब नाम नहीं रखते, लेकिन फिजा नाम रखते हैं। ज़हब का मतलब है सोना। इसी तरह याकूत और मरजान दोनों पत्थरों के नाम है जिसका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है, और ये बड़े अजीब किस्म के हैं। मरजान बड़ा खूबसूरत पत्थर है, ये पत्थर भी और पौधा भी है, और इसका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने इसको बतौर एहसान जिक्र किया है कि हमारे ऊपर ये अल्लाह पाक ने एहसान फरमाया। मरजान, याकूत भी ऐसा ही है, मुबारक पत्थर है। इसी तरह खबीस और तैयब, यानी खबीस का मतलब नापाक और तैयब का मतलब पाक। साइल और महरूम, दो लोगों का हक है आपके ऊपर, एक साइल यानी मांगने वाला, और महरूम जो खुद ही महरूम है, वो उसको आपने देना है अपने माल में से हिस्सा। अल हर्स व नस्ल, नस्ल का तो सबको पता है, लेकिन हर्स क्या है। एक नाम होता है हारिस, हारिस यानी खेती बाड़ी करने वाला, मेहनत करने वाला बंदा, उसको कहते हैं हारिस। अगर वो सा के साथ हो, सा के साथ, अगर सीन के साथ आ जाए हारिस, तो वो सीन के साथ होगा चौकीदार या मुहाफिज या निगहबान, उसको बोलते हैं हारिस। इसी तरह लड़कियों, इब्राहीम और मूसा, इब्राहीम और इसहाक, इसहाक और याकूब, मूसा और ईसा, दाऊद और ईसा, दाऊद और सुलेमान, फिरऔन और समूद, तीन और जैतून। हाँ, तो जैतून और तीन का नहीं पता हमें। तीन कहते हैं इंजीर को, इंजीर को तीन बोलते हैं,
اور زیتون زیتون سب کو پتہ ہے. جن اور انس یعنی جنات اور انسان. تو آپ دیکھ رہے ہیں دو دو لفظوں کو آپ ملائیں گے تو وہ بھی آپ کو پتہ لگے گا یار یہ تو اردو کے الفاظ ہیں. اسی طرح الاسم والعدوان یہ نہیں آئے گا آپ کو. اسم کہتے ہیں گناہ کو. اسم قرآن مجید میں دو لفظ آتے ہیں گناہ کے لیے. ایک لفظ ہے اسم, اس کو یاد رکھیے اسم, اور دوسرا لفظ ہے جناح جس کو ہم گناہ بولتے ہیں. یہ جناح لفظ ہے جناح. تو جناح جیم کو گاف پڑھتے ہیں نا, جیلانی گیلانی, اس لیے جناح یعنی گناہ. تو یہ وہی ہے, یہ گناہ کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. عدوان یعنی کہ زیادتی کرنا کسی کے ساتھ, زیادتی کرنا, اس کو عدوان بولتے ہیں, دشمنی کرنا. اسی طرح اسم اور بغیون, بغی اسم کا مطلب تو گناہ ہو گیا نا, بغی کا مطلب ہو گیا بھائی بغاوت, اردو کا لفظ ہے بغاوت, بغی. سو اور فحشا, فحشا کا تو سمجھ آتی ہے, فحش یعنی فحاشی. اور سو کیا چیز ہے؟ سو کا مطلب ہے بری, برا. سو برائی کو سو بولتے ہیں. کفر اور فسوق, کفر کا تو پتہ ہے لیکن فسوق کیا ہے؟ یہ فسق ہے, اعلانیہ گناہ. جو بندہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے اس کو فاسق بولتے ہیں. بڑا گناہ کبیرہ کرنے والا بھی فاسق. تو یہ اس کی تعریف ہے, فسوق, فسوق گناہ. اچھا, فسوق اور عصیان, عصیان کا مطلب بھی گناہ ہے. ہاں یہ بھی ہے, نافرمانی کرنا, اس کو عصیان بولتے ہیں. عاصی, عاصی نام لفظ سنا ہوگا آپ نے, عاصی. دیکھیے کچھ لوگ ناموں کے ساتھ دو طرح کے عاصی لکھتے ہیں. ایک یہ عاصی لکھتے ہیں, اس عاصی کا مطلب ہے گناہگار. عاصی, میں تو عاصی بندہ ہوں, بند میں, اچھا میں بندہ عاصی ہوں, یہ وہ عاصی ہے. ٹھیک ہے, گناہگار کو بولتے ہیں. کچھ لوگ نام کے ساتھ آسی لکھتے ہیں لیکن وہ سین کے ساتھ لکھتے ہیں, آسی اس طرح لکھتے ہیں. تو آسی کا مطلب ہوگا امید رکھنے والا, آس رکھنے والا. ہاں اردو کا لفظ ہے آس رکھنے والا, اس کو آسی بولتے ہیں. اچھا, عداوہ اور بغضا, عداوت کا ابھی پڑھا ہم نے, دشمنی کو کہتے ہیں عداوت. اور بغضا یعنی بغض کو, بغضا, اس کو بغضا بولا کریں. دوات کو آپ نے اردو میں زوات پڑھنا ہے, عربی میں دوات پڑھنا ہے, اس کو مکس اپ نہیں کرنا بالکل بھی. اسی طرح آپ تین لفظ بھی ملا سکتے ہیں لڑکیوں, ابراہیم, اسحاق اور یعقوب. ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ, سمود اور عاد اور فرعون, قارون, فرعون اور حامان. حامان کون تھا؟ کوئی بتائے گا مجھے حامان کون ہے؟ یہ حامان صاحب کون ہے؟ اس کا نام ہم نے کب سنا ہے؟ حامان کون ہے بھائی؟ یہ حضرت موسیٰ کے چچا زاد تھے. وہ قارون ہے نا, قارون کا رشتہ دار تھا نا. وہ قارون تو چلا گیا, لیکن سوری حامان کیا ہے؟ حامان کی کیا پرسنالٹی تھی؟ اچھا تھا یا برا تھا یا کیا ہے؟ یہ بہت مالدار تھا. وہ قارون ہے لڑکی, کیا کر رہی ہو؟ قارون تھا, وہ قارون تھا. سر حامان جادوگر نہیں تھا؟ نہیں وہ حامان ڈرامہ میں حامان, وہ ہامون جادوگر تھا, ہامون. نہیں لڑکی وہ نہیں ہے, وہ تو ہمارے بچپن کا ڈرامہ تھا نا. وہ ہامون جادوگر. سر یہ عائشہ ہنستا فرعون نہیں کے ہے. ساتھ تھا, فرعون کے ساتھ تھا. ہاں فرعون شاباش کو شاباش. پاکستانیوں سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے حامان کے کردار کو؟ اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں کہ فرعون اور حامان ڈرے ہوئے ہیں. ہاں ڈرے ہوئے موسیٰ سے. اف اف اف. یہ حامان تھا, جرنیل تھا ان کا, فرعون کا, فرعون کا جرنیل تھا. یہ تھا حامان, یہ چلاتا تھا نا, چمچا تھا, چمچا. ہم یہ تباہ کرتے ہیں. یہ تھا حامان, حامان کا یاد رکھیں. اچھا جی, برے لوگ ہیں یار, ان بروں کی کیا باتیں کرنی. اچھا جی, کتاب, حکم. اچھا, حکم کا مطلب کیا ہے؟ حکم کا مطلب فیصلہ ہوتا ہے, حکم فیصلہ. اور نبوہ, نبوہ کا مطلب ہے نبوت, اس کو تا کو ہم لمبا کر دیں گے. اسی طرح کفر, فسوق اور عصیان تینوں کو ساتھ ملا دیا. کفر میں نے پھر بتایا تھا, کفر کا مطلب ہے انکار کرنا. ٹھیک ہے, اچھا یاد رکھو, قرآن مجید میں اگر کفر آ جائے تو کفر کا مطلب ہوگا انکار کرنا. اب وہ اللہ رسول کا انکار بھی ہو سکتا ہے, اور جو ہے وہ کسی نعمت کا انکار بھی ہو سکتا ہے. ہم کفر کا دوسرا معنی کریں گے ناشکری, یعنی وہ اللہ کا احسان نہیں مان رہا, تو وہ کفر کا معنی ناشکرہ بھی کریں گے. اللہ پاک نے فرمایا میرا شکر ادا کرو, ولا تکفرون, اور کفر نہ کرو یعنی ناشکری نہ کرو. ہاں, کفران نعمت اردو کا لفظ ہے, کفران نعمت.
تو फसूक मैंने फिर बता रहा हूँ, फिस्क गुनाह को कहते हैं, बड़े गुनाह को, और फासिक वो बंदा करने वाला, वो गुनाह एलानिया करने वाला। और इस्यान मैंने भी बताया आपको, आसी का के गुनाह को कहते हैं और सरकशी को कहते हैं। इसी तरह शम्स, कमर और नुजूम मशहूर है। फहशा फहश है। मुनकर, हाँ मुनकर क्या है? मुनकर का मतलब बुराई है, ठीक है, मुनकर बुराई को कहते हैं। अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर बुराई, और बग़ी बगावत को कहते हैं। इसी तरह समा वल बसर वल फुआद, हाँ ये 3 लफ्ज बड़े जबरदस्त है। अल्लाह ने फरमाया इनके बारे में पूछा जाएगा। समाअत बसर, बसर को बसारत, और फुआद कहते हैं दिल को, दिल को, दिल के अंदर भी दिल का जो दिल होता है उसको फुआद कहते हैं, ठीक है। ये जुमला याद रहेगा ना, दिल को फुआद कहते हैं। ये जो हम कहते हैं ना फवाद, फवाद नहीं बल्कि फुआद लफ्ज है, ठीक है। अरबी में अगर आपकी उर्दू में कहते हैं फवाद तो फवाद भी चलेगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं, लेकिन ये लफ्ज है फुआद। जैसे मैंने कहा था सुआल, सवाल भी ठीक है लेकिन सुआल लफ्ज। तो ये आपने देखा अहबाब कि आप 2 लफ्जों का जुमला भी बना सकते हैं, कुरान मजीद में तलाश कर सकते हैं, और इसी तरह 4 का भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ मैं दिखा रहा हूँ 4 लफ्जों का तर्जुमा, देखिए ये इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। किताब देखो यहाँ पे लैल रात को कहते हैं, नहार दिन, शम्स और कमर आप कर सकते हैं। किताब हिकमत, तौरात और इंजील, नूह इब्राहिम मूसा और ईसा। ये क्यों ऐसा लिखा हुआ है? आपको तर्जमा के साथ मानूस करने के लिए ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि आप समझे बात को। तो आपको, आप घबराना नहीं कुरान मजीद को देख के, आप कुरान मजीद को देख के जरा गौर करें, आंखें पास है ना खोल के देखें कि ये है क्या, क्या लिखा हुआ है। गौर ही नहीं करता कोई कुरान मजीद में, कोई बंदा ही नहीं है जो देखे। आप खुद तर्जुमा कर सकते हैं लेकिन आप करते नहीं है। 50% से ज्यादा तर्जुमा खुद कर सकते हैं। जकरिया जिसको हम जिक्रिया बोलते हैं, तो जिक्रिया लफ्ज ठीक नहीं है, बल्कि क्या लफ्ज है? जकरिया। इसी तरह यहया उनका बेटा है जिसकी अल्लाह पाक ने बहुत तारीफ की है, बहुत तारीफ की है, और नाम भी खुद रखा। ईसा, इलियास, ये सारे पैगंबर हैं, 4 पैगंबर हैं। इस्माइल, यसा, यूनस और लूत, ये 4 पैगंबर हैं। दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, अय्यूब नहीं बल्कि अय्यूब, यूसुफ, यूसुफ नहीं बल्कि यूसुफ, मूसा और हारून। आप देखिए आपने तो कितने नाम, ये तो 6 लफ्ज हो गए, एक साथ आप पढ़ सकते हैं, तर्जुमा कर सकते हैं। ये कौन बता सकता है? ये नहीं बता सकेंगे आप, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। हाँ, शम्स और शम्स वल कमर, शाबाश। जैतून के साथ क्या आता है? वत्तीन तीन वज़ैतून, वत्तीन वत्तीन, वज़ैतून, शाबाश। तौरात और इंजील, जबूर, इंजील। अलबिर्रु व और बहर, नहीं, ये वो नहीं है, ये बर नहीं है, ये बिर है, बिर। अलबिर्रु व तकवा, तकवा, तकवा नेकी और तकवा। अच्छा जी, उम्रा के साथ क्या आ सकता है? अल हज वल उम्रा, क्या बात है, अल हज वल उम्रा। मौत और हयात, हया, मौत और हयात, शाबाश, जिंदगी। इसी तरह अमन और जंग, लेकिन अरबी में क्या आएगा? अल अमन वल खौफ आएगा, खौफ। खौफ, 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 हाँ खौफ, शाबाश। अल खौफ वल अमन, अमन भी ठीक है लेकिन कुछ और आएगा, जू। जो अल्लाह पाक ने क्या बताया? अच्छा, याकूब के साथ किसी का नाम बताएं। इसहाक, इसहाक और याकूब, शाबाश, इनके इनके वालिद का नाम था इसहाक, उनका बेटा याकूब, और याकूब का बेटा कौन है? यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम, शाबाश। अच्छा जी, चलिए। फुसूक, अल इस्यान वल फुसूक, अल क्या हो सकता है यहाँ पे? बगदा के साथ क्या आ सकता था? तो मुझे याद नहीं है। अल इल्म वल हिकमा, अल इल्म वल हिकमा। चलो इंशाल्लाह फिर ये 13 से हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। एक आपसे बस 2-3 मिनट के लिए मुझे आप और चाहिए आपके,
और वो है ये किताब पढ़ने में चाहता हूँ। एक चीज़ पढ़ना चाहता हूँ सिर्फ, वो आपको आती भी है पहले से, एक दफ़ा दोबारा हम दोहरा लेते हैं, खैर है सबके लिए, बरकत के लिए। देखिए भाई, कह रहे हैं कि हरूफ हमने पढ़ लिए थे, 28 हरूफ हैं कुरान मजीद में, 28, और वो जब आपस में मिलते हैं तो उससे लफ्ज बनते हैं, ठीक है। तो लफ्ज जो बनते हैं, तो लफ्ज दो तरह के होते हैं, कभी तो बेमाना होते हैं, माना ही नहीं होता, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम बामाना लफ्ज को डिस्कस करेंगे, जिसका कोई ना कोई मतलब हो, तो उसको हम बामाना लफ्ज को क्या पढ़ेंगे, कलिमा। बामाना लफ्ज को कलिमा पढ़ते हैं, और कलिमा की जमा है कलिमात, कलिमात। तो कुरान मजीद, जब हम कहते हैं ना कुरान मजीद के कितने अल्फाज हैं, या कुरान मजीद को हम कहते हैं कुरान मजीद के कितने कलिमात हैं, कलिमात है कुरान, क्योंकि कुरान मजीद में हर लफ्ज जो है वो बामाना है, इसलिए कलिमात कहते हैं, ठीक है। ये मदरसा है, आप चीज़ों को समझें आप, ठीक है, मदरसे की नौइयत समझें, ताकि किताबें आपको पढ़ना आसान हो जाए। अच्छा, तो अब देखो, काफ लाम और मीम के मिलने से कलम बन गया, जिसे हम लिखते हैं। अलिफ नून सीन, अलिफ नून से इंसान बन गया। काफ ता अलिफ बा से किताब बन गया। तो ये देखिए, हरूफ से कलिमा बनते हैं, लफ्ज बनते हैं, बामाना लफ्ज बनते हैं, बस। तो जब भी किसी जुबान के कवायद मुरतब किए जाते हैं, यानी ग्रामर बनाई जाती है, तो उस जुबान में इस्तेमाल होने वाले तमाम बामाना लफ्ज की ग्रुपिंग कर ली जाती है। अंग्रेजी में ये ग्रुपिंग 8 तरह की होती है, जिसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वो सब जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, वो 8 तरह की होती है, लेकिन उर्दू में और अरबी में सिर्फ 3 हैं, और कोई याद नहीं करता। आहो, कैसे लोग हैं। ये देखें, इसम, फेल और हर्फ, बस इसम, फेल और हर्फ, इतना आसान है ये। इसम क्या होता है, इसम में जमाना नहीं होगा, पहले तो ये समझिएगा। ये किसी शख्स, चीज, जगह या सिफत, अच्छी या बुरी सिफत हो सकती है, उसको कहते हैं इसम। काम भी हो सकता है। अच्छा, काम के से मुराद क्या है, यानी काम का जो नाम होता है, काम नहीं, वरना काम में तो जमाना होता है, वो काम नहीं, काम का नाम जो होता है वो इसम होता है। जैसे उसको हम मस्दर कहते हैं, जैसे उसके आखिर में ना आता है, ना ना ना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, जाना, आना, मारना, खाना, उर्दू में ऐसे होते हैं। इंग्लिश में टू होते हैं, टू स्लीप, टू गो, टू रन, ये सारे मस्दर होते हैं, ठीक है, और रूट वर्ड होते हैं। और हमें इसके साथ हम फारसी में नून होता है, जैसे जदन, नशिस्तान, बरखास्तन, ऐसे तन आते हैं आखिर में। तो अरबी में इसकी कोई ऐसे आपको नहीं बता सकता मैं, मस्दर को पहचानना जरा मुश्किल होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको इसकी समझ आती रहेगी। तो इसम को समझिए, पहले छोड़ दे मस्दर को, इसम को समझिए। किसी शख्स या चीज या जगह का नाम इसम होता है, इसम, और उसमें कोई जमाना नहीं होता, ये बस पक्का याद रखें। दूसरा है फेल, ये भी बामाना लफ्ज होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जमाना होना चाहिए, माजी, हाल, मुस्तकबिल। जैसे मारा, अब मारा क्या, मारेगा, मारता है, ये है फेल। और अरबी में ये सारा मौजूद है, अरबी में सबको आता भी है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। तो हम इसको आगे चलते हैं, ठीक है। हर्फ, वो कलिमा जिसके माना होते तो हैं लेकिन अधूरा होता है माना, हर्फ उसको कहते हैं, ठीक है। माना बामाना लफ्ज होता है, लेकिन जब तक ये किसी इसम या फेल के साथ इस्तेमाल ना हो, इसका मतलब हमें अधूरा समझ आता है। जैसे उर्दू में कहते हैं पर, मैं, और से, ये क्या माना है, माना तो है लेकिन क्या। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम लोग इनको साथ मिलाएंगे, जैसे कुर्सी पर, मस्जिद से, लाहौर तक, ये हुरूफ होते हैं कि जुमला बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो इसम, फेल और हर्फ आपने याद रखने हैं इंशाल्लाह। हम पहले इसम को समझेंगे, फिर फेल को समझेंगे, फिर हर्फ को समझेंगे, और तीनों को साथ साथ भी समझते रहेंगे जितना जितना भी हमारे पास वक्त आएगा। तो ये है ग्रामर में हमारा हिस्सा जो हमने आज पढ़ा लिसानुल कुरान से। ये किताब बड़ी मारूफ है और लोग बहुत पढ़ते हैं इसको, तो इसलिए मैंने कहा चलो यहाँ से ही आपको पढ़ाता हूँ। तो यहाँ से साथ रहता है, ये देखिए ना, 2-4 मिनट की बात थी बस, ज़्यादा नहीं। तो ये किताब भी मैं आपको भेज सकता हूँ आपके ग्रुप में, और दूसरी किताब भेज रहा हूँ, लेकिन ये मैं आपसे पूछूंगा इंशाल्लाह। और भागना नहीं है आपने, क्लास को नहीं छोड़ना आपने, आप आते रहे, आपने नहीं किया काम, होमवर्क नहीं किया तो क्या हो सकता है। इस तरह सूरह फलक जो मैंने शुरू में पढ़ाई है आपको, और आपको वीडियो भी सेंड करूंगा आपके ग्रुप में,
دوبارہ ریویژن کے لیے. تو اللہ کرے کہ آپ کی سورہ الفلق جو ہے وہ آسان، سب سے آسان صورت ہے. آپ کو بڑا مزہ آئے گا اس کو پڑھ کے صحیح طریقے سے، اور اس کو نماز میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کو حفظ کریں اور پڑھیں. میں آپ کو 100 آیات بھی حفظ کرواؤں گا. 100 آیات وہ ہمارے نصاب میں شامل ہے اس مدرسے کے. ٹھیک ہے، تو 100 آیات بھی یاد کریں گے، 100 احادیث بھی یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور باقی چیزیں بھی یاد کریں گے. آپ نے چھوڑنا نہیں ہے مدرسے کو، اور آتے رہیں. اور اللہ کرے کہ آپ کے لیے آنا آسان ہو، آپ کے لیے روزانہ 9 بجے. اور اللہ کرے کہ آپ کچھ سیکھیں اس سے، اور آپ کے پاس ایک رف کاپی ہو جس میں آپ یہ چیزیں نوٹ کرتے جائیں. اگر نہیں کیا تو اب نہیں کیا تو کریں. سارے لیکچر پڑے ہوئے ہیں اسٹیشن اس پہ چینل پہ پڑے ہوئے ہیں، تو آپ جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں چینل کو، اور وہاں سے اس کو نوٹ کرتے جائیں. جس کو چاہیے ویڈیو چاہیے مجھے بتائیے گا کہ فلاں فلاں ویڈیو، تو وہ بھی آپ کو میں دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو ضرور لکھیے گا، سمجھیے گا، اور یہ آپ کو زندگی میں کام آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی بھی لیکچر ایسے فضول نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ہر چیز سمجھ آئے گی انشاءاللہ. چلیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارا یہاں جمع ہونا، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں توفیق ہو، اللہ توفیق نصیب فرمایا کہ ہم لوگ علم کو حاصل کریں، اور علم نافع کو حاصل کریں، اور اللہ کے لیے حاصل کریں، اللہ کی رضا کے لیے حاصل کریں، اور اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارا سارا کا سارا بھروسہ اللہ کی رضا پہ ہے، اللہ تعالیٰ کے احسان پر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احسان، اپنے کرم، اپنے فضل سے نوازے. اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام قرض داروں کے قرض کو ادا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسافروں کو ان کی منزلوں تک پہنچائے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان اس کلمے کے ساتھ فرمائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ آپ سب تمام دوستوں کا، کہ آپ کی سماعتوں کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام.